Hello dear student, I am Varun Kumar Nisha from LBM Public School. In this video, we are discussed about the some remaining separating methods. Some remaining separating methods. Separating methods. So dear student, we are discussed about the separating method, that is hand picking, winnowing, filtration, decantation, distillation, and after that we have discussed in this video the remaining separating method. And very common separating method, that is evaporation. Dear student, evaporation is a process through which the liquid start converting into water vapor without reaching its boiling point. It is a very simple process and it is a very surface phenomenon. Their liquid molecule absorb the energy from surrounding and it converted into liquid state. It converted into gaseous state. But it is a very slow process. To increase this process, we can supply increase this process, we can supply extra amount of heat to suppose you have a container and here is tripod stand. And here is supplying of flame to the burner, and here is liquid or solution of sugar. And after heating there is raising of water vapor. After some time the whole amount of water is converted into vapor or gaseous state. In this way, and the remaining is sugar crystal is residue. And this residue in the form of sugar crystal, वो क्रिस्टल के फॉर्म में बॉटम पे सेटल हो जाता है. मीन्स दैट सिंपल प्रोसेस है.
कि आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने शुगर सोल्यूशन आपके पास है, तो वो धीरे धीरे टेक अ लॉन्ग टाइम थ्रू द इवेपोरेशन। अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं एक क्रिस्टल को, बट वो सोल्यूशन फॉर्म में है, तो उसमें इवेपोरेशन के थ्रू हम लॉन्ग टाइम में एक सिंपल इवेपोरेशन जो होता है, अगर उस इवेपोरेशन प्रोसेस में हम एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट देते हैं तो एक सर्टेन टाइम पे वो पूरा का पूरा जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट के बाद वो जो रिमेनिंग होता है वो हमारा क्रिस्टल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में मिल जाता है हमारा। इवन अगर ये शुगर सोल्यूशन है तो शुगर मिल जाएगा, अगर आपके पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, अगर आपके पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, दैट इज CuSO4 सोल्यूशन है, दैट इज CuSO4। अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो उसमें भी आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो ऑलरेडी इसमें से मिल जाएगा आपको पूरा। अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन ऑलरेडी वेपराइज हो जाएगा, और जो ग्रीन कलर का ग्रीन और ब्लू कलर का ब्लू कलर का बॉटम पे क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा आपको कॉपर, दैट इज कॉपर मिलेगा। सो इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन अ प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल of particular mixture that can be dissolved in it after removing of water by the evaporation process. And after that discussion, we are now try to understand about the separating the mixture, separating the mixture, by more than one method. By more than one method. It's simple process. Suppose you have a mixture about sand, sugar, and iodine. You have a mixture reagent of sand, sugar and iodine, and how would you separate this mixture? So this mixture can be separated by, let's apply more than one method. So first add some amount of water. Add some amount of water and sand, sugar, iodine. Add some amount of water sand and sugar, iodine. इसमें से क्या डिजॉल्व हो जाएगा? आपका शुगर डिजॉल्व हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। filtration process and evaporation. इवेपोरेशन करने के बाद प्योर फॉर्म मिल जाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ शुगर क्रिस्टल, प्योर फॉर्म ऑफ शुगर क्रिस्टल।
we can find the pure form of sugar crystal. And after that, the remaining residue is iodine and sand. Iodine plus sand. Done by, it can be separated by, मैं थोड़ा सा इसको यहां पे लिख रहा हूं, it can be separated by sublimation process. सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू ये सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद क्या मिलेगा, सपोज ये सेपरेट, बिकॉज आयोडीन इज सब्लाइम इन नेचर, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सब्लाइम इन नेचर होता है, सब्लाइम इन नेचर होता है। तो प्रॉपर वे में सब्लिमेशन प्रोसेस सेपरेट कर लेंगे। क्या सेपरेट करेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ iodine, pure form of iodine, pure form of iodine, and remaining is again remaining residue is sand. So in this process, this mixture is separated by, एक ही मिक्सचर है बट मोर देन वन मेथड यूज करना पड़ा, सैंड, शुगर प्लस आयोडीन। ये मिक्सचर एक ही में मिक्स है, तो सेपरेट करेंगे पहले। अगर पहले आप सब्लिमेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले वाटर का किया। ये पूरे मिक्सचर में वाटर मिलाइए, तो पूरे मिक्सचर में वाटर मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या डिजॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको शुगर का सोल्यूशन बनेगा। शुगर का सोल्यूशन में आप फिल्ट्रेशन करेंगे, तो फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा आपको, फिल्ट्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा रिमेनिंग में एक आयोडीन मिलेगा और सैंड, दोनों फिल्टर नहीं होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा फिल्टर में, हमको प्योर फॉर्म ऑफ शुगर क्रिस्टल, सॉरी शुगर सोल्यूशन मिलेगा। तो शुगर सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, इवैपोरेशन करेंगे। तो इवैपोरेशन करेंगे तो इवैपोरेशन के बाद क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म ऑफ शुगर क्रिस्टल। एक अलग सोल्यूशन जब हम उसको इवैपोरेशन करेंगे तो पूरा पूरा वाटर इवैपोरेटेड हो जाएगा, और बाद में जो क्रिस्टल बचेगा वो शुगर क्रिस्टल होगा। रिमेनिंग रेजिड्यू में आपको क्या मिल रहा है, रेजिड्यू इज आयोडीन सैंड, रिमेनिंग रेजिड्यू इज आयोडीन एंड सैंड। तो आयोडीन एंड सैंड में क्या हुआ कि फिर इस मिक्सचर को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन आप जानते हैं कि पूरा पूरा एक सेटअप तैयार होता है, उस सेटअप में हम पूरा एक मिक्सचर में क्या रखेंगे, आयोडीन एंड सैंड। तो सैंड में आयोडीन सैंड रखेंगे, तो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि आपका जो आयोडीन है वो सब्लाइम इन नेचर होता है। तो सब्लाइम इन नेचर होने की वजह से ये पूरा पूरा इवैपोरेट हो जाएगा। इवैपोरेट होने के बाद आप प्योर फॉर्म आयोडीन को कलेक्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट you can take the and remaining is sand. So in this way, in this mixture, to separate that, we are use that filtration, evaporation, 1, 2 and 3 process आपने यूज किया। कौन कौन सा, पहले सॉल्यूशन भी बनाएंगे, सॉल्वेशन बोलते हैं इसको, सॉल्वेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आपने डिसॉल्व किया, तो पूरा मिक्सचर में सिर्फ शुगर डिसॉल्व हुआ, सैंड डिसॉल्व नहीं होगा, आपका आयोडीन नहीं डिसॉल्व होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या डिसॉल्व हुआ, शुगर। तो शुगर को फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, अलग कर लिया तो उसको इवैपोरेशन कर लिया, इवैपोरेशन करने के बाद क्रिस्टल निकल गया और वाटर जो है इवैपोरेशन हो गया, इवैपोरेट हो गया। तो इन दोनों जब शुगर को उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो फिल्ट्रेशन करते हैं और इवैपोरेशन करते हैं, तब जाके हमको प्योर फॉर्म में शुगर मिलता है। दूसरी तरफ जो रिमेनिंग बच रहा है आयोडीन और सैंड, इसमें सब्लिमेशन करते हैं तो बाद में हमें प्योर फॉर्म में आयोडीन मिल जाता है और बाद में बचता क्या है, सैंड। तो हमें टोटल 3 सेपरेटिव मिक्सचर यूज करते हैं, पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा इवैपोरेशन, तीसरा
सब्लिमेशन। तो इन प्रोसेस को इन्वॉल्व करके हम इन सारे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। नाउ यू हैव टू होमवर्क अबाउट दैट। You have to सपोज आपके पास मिक्सचर दे दिया गया, suppose you have a mixture about sulfur plus iodine plus salt. How would you separate this mixture? It can be separated by the process, that is, add some amount of water and टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, पूरा प्रॉपर वे में आप इसको करेंगे, फिर आपको इसी वे में क्लियर हो जाएगा। मैं एक हिंट दे रहा हूं यहाँ पे, जो सल्फर है, सल्फर जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में, कार्बन डाई सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। Sulfur is dissolved into carbon dioxide solution. It is homework for you. Another we will discuss in the next video. Thank you.